प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनं मनोहरं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानमस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यस्यां तन्नो विदुषरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं करुणस्ते वनस्ते वनस्ते बहुधिरन्नथा सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुपाद पद्मनित्य लीलाविष्ट हृदय वंदे गोस्वामी महाराज तार चरण कमल वंदना करी तार हयতো কি কৃপা প্রার্থনা করি এবং দূর দূরান্তে যত ফেসবুকে ইউটিউবে যারা প্রোগ্রাম দেখছেন, ফেসবুকে যারা দেখছেন তারা শেয়ার করবেন, ইউটিউবে যারা দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব অবশ্য করবেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দকে দূর দূরান্তে বৈষ্ণবগণ বিদ্বৎ সমাজ মাতৃশক্তি সবাইকে জানাই আমার হার্দিক অভিবাদন এবং আশ্রমবাসী আশ্রমের সমস্ত ভক্তবৃন্দকে আমার অভিবাদন জানিয়ে বিচার শুরু করছি। অর্জুন ভগবানকে বলছেন অধিভূত কি? আর আধ্যাত্মই বা কি? সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলছেন যে পুরুষে যে অধিভূতম ক্ষরভাব পুরুষশ্চাধিদৈবতম অধিযজ্ঞ অহমিমাত্র দেহে দেহৃতাম্বরা। তাহলে অধিভূত হচ্ছে জগৎ চরাচর, সমস্ত প্রাণী পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জীব, এরা অধিভূত। আর অধিদৈব যে পুরুষ অন্তর্যামী রূপে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন তিনি অধিদৈব। অধিযজ্ঞ অহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বরা। আর ভগবান বলছেন যে আমি যে আছি এটা তো চিরসত্য। এই জন্য অধিভূত ক্ষরভাব অধিভূতম, এই অধিভূত অধিদৈব এই যে বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা বিচার করছি, এগুলো জগতে নানানভাবে মানুষকে কি করে? বিভ্রান্ত করে, চিত্তভূমিকে অশান্ত করে দেয় এবং চিত্তের নানা দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে। সেই জন্য গীতার এই দিব্য ব্যাখ্যা, দিব্য উপদেশ যে যত ভেতর থেকে বুঝতে পারবেন, ভেতর থেকে নিতে পারবেন, তার জীবন তত কল্যাণময় হবে। সেই জন্য ভগবান বলছেন যে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ হচ্ছে অধিদৈব আর জগৎ হচ্ছে অধিভূত। জগতের সমস্ত প্রাণী সব অধিভূত। আর আমি দেহে দেহভৃতাম্বর, অধিযজ্ঞ হচ্ছে আমি, জীবের অন্তরে বসে আছি। তাহলে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ যিনি সৃষ্টির আদি তত্ত্ব, আর আমি জীবের মধ্যে বসে আছি আত্মা রূপে। তো আমি অন্তর্যামী রূপে যে বসে আছি, মানে ভেতর থেকে যা কিছু সব নিয়ন্ত্রণ করি, সব কিছু ভালো মন্দ পাপ পুণ্য সব কিছুর উপরে আমার নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রেরক রূপে প্রকৃতিকে শক্তি সঞ্চালন করি, আর প্রকৃতি এদেরকে ঠিক মতো চালায়। প্রকৃতির কাজ হচ্ছে চালানো, আর আমার হচ্ছে প্রকৃতিকে শক্তি দেওয়া। আমি অন্তর্যামী রূপে ভিতরে বিদ্যমান আছি। এই যে বিশ্ব চরাচর, বিশ্ব প্রকৃতি, একে যত ভালো করে জেনে নেব, তার মানে আমরা সব অধিভূত। জীবনিবহ
সমস্ত জীব জগৎ এরা হচ্ছে সব অধিভূত বস্তু, সংসার চরাচর সব কিছু অধিভূত। আর অধিদৈব হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করে আছেন, সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষই হচ্ছে অধিদৈব। আর অধিযোগ্য হচ্ছে ভগবান। এই জন্য নিরন্তর মানব হৃদয়ে যোগ্য হয়ে চলেছে, তাই না? আমরা প্রাণে অপানম, প্রাণে অপান, এটা একটু ব্যাখ্যা করে দিই। সেদিন বলতে বলতে বিষয়টা অন্যদিকে চলে গেল। যে এই যে আমরা বলি ওম অপান বায়বে নমঃ, তাহলে অপান বায়ুর অবস্থান कोথায়? नीचे। नाभि से नीचे का हिस्सा जो है वो अपान वायु मेरा डिस्टर्ब है। अच्छा, तो ये जो अपान वायु है ये नाभि से नीचे के हिस्से को कंट्रोल करता है। नाभि থেকে নিচে অংশটা অপান। এর প্রাণ বায়বে নমঃ, অর্থাৎ নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত এই সমান বায়ু, সমান বায়ুর অবস্থান হচ্ছে নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত, এখানে সমান বায়ু কাজ করে। আর এই জায়গা থেকে এটা শিকলের মতো, হ্যাঁ, শিকল যেরকম জুড়ে আছে না, একটার সঙ্গে একটা বায়ু এরকমভাবে লিঙ্ক তৈরি করে আছে। এবং যোগীগণ এটা তাদের যোগ সাধনায়, তাদের হৃদয় সাধনায় তারা কিন্তু গভীরভাবে অনুভব করছেন, দেখছেন এবং অনুভব করে দেখছেন যে এইভাবে শিকলের মতো এগুলো আছে। এবার ওই प्राणवायु के साथ उदान वायु अर्थात समान वायु के साथ प्राणवायु हृदय से लेकर के नासिका के अग्रभाग तक ये जुड़े हुए हैं छिकली के तरफ। 1 2 3 और चौथा वायु क्या है? बोले वो है यहाँ से अर्थात कंठ से लेकर के वो सीधा सहस्रार तक ये उदान वायु निवास करता है। इन वायुओं को जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं कहते चले जाते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं होता कि ये क्यों बोला जाता। अपान वायवे नमः, समान वायवे नमः, प्राण वायवे नमः, उदान वायवे नमः। व्यान वायु, व्यान वायु क्या है? व्यान वायु হচ্ছে পাকে সমস্ত শরীরকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর ব্যান বায়ুর আরেকটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে रिजल्ट आउट करा। क्या है उसका नाम? रिजल्ट आउट करना, रिजल्ट देना। जैसे हमने जिंदगी भर जो भी काम किया है तो उस काम को मृत्यु काल में ये व्यान वायु कई काम करते हैं। जैसे शरीर के जो मल मूत्र का त्याग कराना, उसका पेशाब क्रिएट करना, ये सब व्यान वायु के द्वारा ही होता है। वो रिजल्ट देता है। जैसे हम जिंदगी भर जो भी कुछ काम करते हैं, যা কাজ কিছু কাজ করে যাচ্ছি, এই কাজের রেজাল্ট তো মৃত্যুকালে দেবে। কে দেবে? व्यान वायु देवे। व्यान वायु मृत्यु काल में जो भी कुछ किया हुआ कर्म का फल है, जो हमारे अंदर रील बनता जा रहा है, तो रील जो बन रहा है वो रील मृत्यु काल में जीव को दिखाया जाएगा। जहाँ उसका सबसे ज़्यादा कर्म का इफेक्ट जहाँ है, वहाँ जाके मन अटक जाएगा और वहाँ से वो शरीर को छोड़ देगा। समझ गए? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसलिए गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलीवर। तो अंत काल में मेरा स्मरण करके आकाश नहीं आएगा। आ रहा है? पेट थोड़ा सा, हाँ, पेट गड़बड़ हो जाएगा, फिर दोबारा अच्छा। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलीवर। जैसा हाँ, स्मरण तो अंतकाले भगवान का स्मरण कर लो, मुक्ति हो जाएगी। भगवान ही कह रहे हैं,
लेकिन स्मरण तो तभी होगा जो तुम्हारे अंदर सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है ना, सीसी कैमरा जैसा। तो ऐसे वायु वो तो अपने आप रिजल्ट को शो करेगा। तो तुम भगवान को स्मरण कैसे करोगे? समझ गए मेरी बात को? व्यान वायु पूरा अलग है। पूरा शरीर पैर से लेके हाँ, पूरा अपामंडल और व्यान वायु अलग है। हाँ, 5 प्राण वायु 5 है, तो उसमें से व्यान वायु है। तो व्यान वायु क्या कहता है, करता है, वो सारा रिजल्ट को देता है। जैसे शरीर के बाहरी वस्तुओं को निकाल देता है, जैसे शरीर के सिस्टम को, जैसे हम भोजन किए उसमें जो सार है वो रस, रक्त, मांस, मर्जा, अस्थि के रूप में जो बदलता है, सप्त धातु होता है ना। भोजन करने के बाद जो उससे जो जीष्ट हमको मिलता है उससे सप्त धातु होता है। समझ गए मेरी बात? सप्त धातु। तब उन्होंने पहले भोजन किया, फिर भोजन के बाद उसमें से रस बनता है। যা খাই তার থেকে রস সৃষ্টি হয়। রসটা ধীরে ধীরে ওই শরীরে যে তাপমাত্রা আছে সেই তাপমাত্রার প্রভাবে ঘনীভূত হয়ে রক্ত হয়ে যায়। রক্ত, রস, তারপরে রক্ত, তারপর রস রক্ত হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে ওই রক্তটা মাংসে রূপান্তরিত হয়। মাংসের থেকে মেদ রূপে, চর্বি রূপে রূপান্তরিত হয়। তারপরে সেটা অস্থি রূপে রূপান্তরিত হয়। তারপরে সেটা মর্যা রূপে রূপান্তরিত হয়, মানে শুক্র, বীর্য, हाड़ेर मध्य जे है तत्व। तो ये सप्त धातु के रूप में जो भी हम भोजन करते हैं, ये धीरे धीरे इसका रूपांतर होता रहता है ना। तो ये सब व्यान वायु इसको डिसाइड करता है, ये चीज अलग, इसको अलग कर दो और इसको शरीर में लगा दो। जब हमारा तबीयत खराब होता है तो व्यान वायु उसके कारण बनकर, तो जो आदमी निरंतर ध्यान, उपासना, साधना करेगा, जैसे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन करते हुए मुझे अनुभव हो गया मेरे शरीर में कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ डेफिसिट हो गया, किसी चीज का डेफिसिट हुआ, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने कहा कि एक बार मशीन ले आओ ना। तो थोड़ा टेस्ट किया, देखा हाँ डेफिसिट है। तो उसके लिए फिर उसका उपाचार करना जरूरी है। भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। भगवान का धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी क्या है? औषधि को लेकर के तो ये प्रकट हुए, अमृत को लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए समुद्र मंथन के काल में। तो इसलिए जो भी कुछ हम करते हैं वो বুঝতে পারছেন তো, ধন্বন্তরী রূপে ভগবান এসেছেন। তাহলে ঔষধি সব সমুদ্র মন্থনে তুলসী যেমন এক মহা ঔষধি, सर्वौषधि रसेनैव पुराकाले समुद्र मंथने जीव कल्याणार्थाय विष्णुनाम तुलसी कृता। सारे औषधि वृक्षों के रस को लेकर के समुद्र मंथन काल में भगवान ने तुलसी का सृजन किया। इसलिए तुलसी एक ऐसे वृक्ष है, ऐसे तुलसी के पत्र है जो हर बीमारी में कुछ ना कुछ फायदा करता ही है। इस तुलसी का पत्ता जो रोज पिएगा उसको बहुत से बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। जैसे रोज अगर तुलसी का पत्ता खाता है, 10-12 पत्ता खा लेता है, तो उसको कभी मलेरिया नहीं होगा, छोटे छोटे बीमारियों से छुटकारा होगा, सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी मतलब ठंडा बीमारी का बुखार वगैरह, जुकाम, ये सब नहीं होगा। तो तुलसी में ये सारे गुण है। बच्चों को जन्म लेने के बाद तुलसी का रस और थोड़ा शहद मिला के बच्चों को अगर ठंडी के मौसम में थोड़ा पिला दिया जाए तो बच्चे का शरीर भी ठीक रहता है। मधु और तुलसी पाতার রস মিলিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ালে ভালো থাকে, সর্দি হবে না, শরীর ভালো থাকবে बोले खाओ। আমরা ये गांव में तो बहुत चलता है, जब मालूम है ना आपको, तुलसी का रस और शहद दोनों मिला करके एक साथ बच्चों को पिला दिया जाता है। छोटे बचपन को
जब भी पिला दो, जो अभी दूध पीने वाले बच्चे हैं, तो साथ उसी समय इफेक्ट होता है उसका। ये बहुत जरूरी है जीवन काल में हमको ये सब जानना और इसका प्रयोग करना और आनंद से रहना। आनंद ही जीवन है। आनंदेन कल्यमानि भूतानि जायन्ते। सभी प्राणी आनंद से जन्म लेता है। आनंदेन कल्यमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। आनंद से जी रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो हम कल व्याख्या कर रहे थे कि संसार में जो भी कुछ हमको मिल रहा है उसका थोड़ा मंथन किया ना, वो 4 प्रकार का है। कोई ऋणानुबंधी मिल गया पत्नी के रूप में या पुत्र के रूप में या शत्रु के रूप में या पड़ोसी के रूप में, पड़ोसी के रूप में बहुत सारा प्रॉब्लम पैदा करेगा। क्योंकि पड़ोसी सुंदर होने के लिए आपका भाग भी सुंदर होना चाहिए। पड़ोसी, तीसरा जो घर होता है ज्योतिष चक्र में, 12 घरों में से तीसरा घर जो है वो पड़ोसियों का, भाइयों का। अगर तीसरा घर खराब है तो भातृ संपर्क भी अच्छा नहीं रहेगा, पड़ोसियों के साथ संपर्क अच्छा नहीं रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, आप करने जाएंगे तो और उल्टा होगा। तो इसलिए थोड़ा उनसे सावधान होकर अपना ध्यान साधना करना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती तो भाग में नहीं है, तो हम क्या करें? जबरदस्ती उसके साथ तो वो चीज जैसे जहरीला सांप है, तो उसको हम जाके पकड़ने जाएंगे तो हमको तो वो काट लेगा। लेकिन जो लोग सांप के साथ खेलते हैं, जो सपेरे हैं, जो गांव है सब सांपों का, वहाँ तो सांप उनको काटता नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनका दोस्ती है। छोटा बच्चा भी पकड़ के ले आता है, अरे आ नहीं रहा है, इधर खींचो उसको, जोर से खींच रहा है। तो क्यों? उसका वैसे सांप जानता है कि इसको काटना नहीं है, सांप जानता है। तो इसीलिए ये संसार में जो भी कुछ हमको मिल रहा है, पड़ोसियों से प्यार ना मिले तो उसके लिए ग्रह ही कारण है। पुत्र से प्यार ना मिले, पत्नी से प्यार ना मिले और मिले, तो ये दोनों ग्रह के कारण ही होता है। इसे ग्रह, कर्म, काल, ये सब हमारे जीवन में निरंतर ग्रह कर्म काल एरा निरंतर जीवने काज करे चलेছে। সেই জন্য ग्रह सब कुछ, शरीर कैसा रहेगा, तनुभाव, शरीर का जो भाव है, ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शरीर का जो भाव है। तुम प्रवचन में शुरू से क्यों नहीं बैठती है? ঘুমিয়েছিলে? স্নান করছিলে? আচার করার সময় ঘুরতেছে না পাপিজি। ব্যাপার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমাদের জীবনে নানান রকমের প্রবলেম, অর্থাৎ আমরা যা কিছু পাচ্ছি, शरीरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शरीर। लग्न भाव माने 1 नंबर का जो घर है, उसमें जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, आपको ऐसा ही शरीर आपको भोगने पर मजबूर करेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि शरीर को 1 नंबर भाव जो है, अर्थात तनु भाव कहते हैं इसे, लग्न या तनु। तो लग्न भाव या तनु, तनु का मतलब शरीर, ये शरीर भाव लग्न से ही विचार होता है। लग्न में अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ हो तो शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा रहेगा। बलवान ग्रह बैठा हुआ है, लग्नपति लग्न में बैठा हुआ हो तो शरीर अच्छा रहेगा। उसके साथ कोई और बलवान ग्रह गुरु बैठा हुआ हो लग्न में, तो भी शरीर का गठन भी अच्छा करेगा, शरीर को बलवान करेगा। तो जो भी कुछ हमको संसार में मिल रहा है, वो पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के फल से हमको प्राप्त हो रहा है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा नहीं, एकदम निर्मम सत्य है, जिसे हम बदल नहीं सकते।
तो जो भी कुछ है केवल योग के द्वारा अपने भाव जब बदलती है, अपनी भावनाएं बदलती है, अपनी चिंताएं बदलती है, अपनी स्वभाव जब बदलता है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर सारी शक्तियों का समावेश होकर के इन ग्रहों के प्रभाव से भी हमको सेव करने लगता है। और वो भी प्रकृति करती है, वही प्रकृति जो हमको डिस्टर्ब कर रही थी, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमको डिस्टर्ब कर रही थी, वो हमको फिर सहयोग करने लगी। वही प्रकृति আমাকে সাহায্য করবে, সহযোগ করবে, সাহায্য করবে যে প্রকৃতি আমাকে ডিস্টার্ব করছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ये बहुत ही जीवन में जरूरी होता है कि मनुष्य अपने जीवन को खोद समझे और अपने जन्मपत्री को भी समझे। ज्योतिष चक्र का ब्रह्मा जी का यही कहना है, ये वो आत्मकृतम, जो कुछ तुमने किया उसी का फल तुम्हारे पास आ रहा है। तो इसलिए किसी को दोष देने का कोई औचित्य नहीं। पड़ोसी गलत कर रहा है तो हमारे ही कर्म हो गए, हमारी कर्म हो गए। गुरु जी हम तो 2-2 3-3 मकान बदल चुके, लेकिन पड़ोसी अच्छा नहीं है, यही तो बात है। लड़ाई करता है। हाँ, तो पड़ोसी अच्छा नहीं मिला, इसका कारण आपके ग्रह ही इसका कारण है। तो इसीलिए आप किसी किसी को देखेंगे कि पड़ोसी उसको कितना प्यार करता है, कितना संपर्क अच्छा रहता है, लेकिन आपने तो उनके साथ कोई झगड़ा किया नहीं, लेकिन किसी न किसी कारण से आपको अशांति भोगना पड़ा और वहां से भागना पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरे जगह बदलते रहते। तो ये जो प्रॉब्लम आया, ये सब अपने भाग्य से ही हमको मिलता है। इसको अगर हम ना जान लें, समझ ना लें, तो दूसरों को हम दोष देते रहे फिरेंगे, क्या फायदा होगा? फायदा तो कुछ होगा नहीं। हम अगर सोचेंगे कि हमारा पड़ोसी हमको अच्छा नहीं मिलेगा, तो हम उससे बिल्कुल दूरी बना के चलेंगे और इतना दूरी बनाएंगे, प्यार से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाएंगे। समझ गए ना? पड़ोसी अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है इसका मतलब भाई का संपर्क भी अच्छा नहीं होगा। पड़ोसी का अच्छा ना होने का कारण भाई का संपर्क भी अच्छा नहीं रहता। समझ रहे हैं बात को? तो भाई भी प्रॉब्लम करेगा, और पड़ोसी का भाई का संपर्क नहीं है तो ये बाहुओं में, ये हाथ के यहाँ भी दर्द होता है, दर्द का अनुभव कराएगा। ये तीनों जुड़ा हुआ है। तो यही तो महाराज जी जो कहते हैं वो एकदम सत्य है। तो पड़ोसी का प्रॉब्लम होगा तो भाई का भी प्रॉब्लम होगा, और भाई का प्रॉब्लम होगा तो ये जो है हमारा जो नेक है, ये जो आर्म है, इसमें भी तकलीफ का अनुभव कराएगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा। तो ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए जान लेना और समझ लेना और उसके साथ जीवन में चलना। तीनों सच नहीं, महाराज जी जो भी कहते हैं सभी सच है, इसलिए तीनों सच तो है ही है। तो यही संसार है और इसी को मान के चलना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो अधिभूत है सारे प्राणी, सारा संसार की वस्तु जो है वो अधिभूत है, और अधियज्ञ है भगवान नारायण, जो हिरण्यगर्भ पुरुष है, जो सबका अंतर्यामी है, समष्टि, वो नारायण ही अधिदैव है। और अधियज्ञ बोले मैं हूं, मैं परमात्मा के रूप में सबके अंदर, सबके हृदय में विराजमान हूं। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये तीनों हम समझ गए ना? गलती तो नहीं होगी, बोलना नहीं है, यही ज्ञान है। इसे विचार करते रहोगे तो इसी के साथ बहुत सारा ज्ञान जुड़ता जाएगा। आगे जितना लिंक बनेगा वो सब इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही तो है अधिभूत, ये संसार के वस्तुओं को लेकर के चलना पड़ा है।
पड़ोसी, वो भी तो अधिभूत है। तो उसके साथ हमारा ये विवाद, ये झगड़ा, ये अशांति क्यों है? उसको जगह नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग इसलिए देखो, तो इसलिए हमको जाना है कि अधिभूत जो है संसार में, अधिभूत, तो ये संसार का सारा सत्य यहाँ पर है। जो भी जैसे तनुभाव, लग्न भाव अगर खराब होगा तो शरीर का तकलीफ भोगना पड़ेगा। मेरा जो लग्न भाव है, लग्न का स्वामी द्वादश भाव में जाके बैठा हुआ है, इसलिए वो सारा शरीर को थोड़ा तकलीफ, वो घुमाता बहुत है, बहुत ज्यादा घुमाया, बहुत ज्यादा सारे दुनिया में चक्कर लगाना पड़ा। वो लग्न का स्वामी जब दूर रहता है, और लग्न में अगर सूर्य नारायण बैठा हुआ हो तो प्रभाव तो बहुत ज्यादा मिलता है, इतना प्रभाव कि दूसरा उसका तेज सह नहीं पाता। जैसे सूर्य नारायण का प्रभाव हम लोग उसके नजदीक नहीं जा सकते, इसी प्रकार केशवानंद महाराज के लग्न में सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। हमारे लग्न सूर्य को है, इसलिए इसका तेज अलग है, इसका प्रभाव अलग है। ये किसी से डरता नहीं है, और जरूरत पड़ेगा तो आग लगा देगा, भयंकर है। तो ये ग्रहों का प्रभाव है, समझ गए बात को? बहुत जरूरी है इसे समझना। लग्न में सूर्य होने के कारण अग्नि का प्रकोप भी रहता है। बचपन में मैंने 2-3 बार जल गया, बहुत ज्यादा जल गया उस अग्नि जो सूर्य नारायण रहने के कारण 2-3 बार आग से जल गया। और सूर्य नारायण रहने के कारण जहां भी जाता हूं वहां अपना प्रभाव अपने आप फैलने लगता है। जैसे सूर्य जब प्रकट होता है तो अपना प्रकाश अपने आप चारों तरफ फैलता है ना? तो उसी प्रकार केशवानंद जहां भी जाता है वो अपना प्रकाश को हर जगह में फैलाता है। ये जीवन है, ये सत्य है। इन सत्य से जो हमारा विचार है, वो विचार को यदि ऋषियों के विचार को हम ध्यान से सुने, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, तो सारा सत्य अपने आप हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। सब सत्य प्रकट होते रहते हैं। বোঝা গেল তো? বুঝতে পারছো মা? পুষ্প বুঝতে পারছো নাকি পুরো পারছো না? পুরো পারছো না? ও তাহলে একটু বাংলায় বাংলায় বলতে হবে। আর দেখা যাচ্ছে যে যা কিছু তুমি পেয়েছো, ধরো তোমার ছেলে, এখন ছেলে বাবাজি কতটা মার সেবা করবে ওটা তোমার ভাগ্য চক্রে লিখিত আছে। तुम्हारे भाग्य चक्र में लिखा हुआ, लेखा আছে ছেলে কতটা সেবা করবে। যেমন এই আমাদের নমিতা শরীর খারাপ, তো শরীর কতটা ভালো থাকবে এটা তোমার ভাগ্য চক্রে লিখে নিয়ে এসেছো। এবার তুমি কেঁদে কেঁদে ভোগ করতে পারো, হেসে হেসে ভোগ করতে পারো, নেচে নেচে ভোগ করতে পারো, লাভ দিয়ে ভোগ করতে পারো। ভোগ তো করতেই হবে, কি বুঝেছো? ভোগ করতেই হবে, करना ही होगा। যা কিছু নিয়ে এসেছো সব তোমার। এইটা বোঝে না বলে সাধুগুলো সব জমের বাড়ি যায়, ভগবানের কাছে যায়। জানো ভগবানের উপরে নানান সন্দেহ আসে। জ্যোতিষচক্র না জানার জন্য ভগবানের উপরে সন্দেহ তৈরি হয়। भगवान করল, भगवान हमारे ये कष्ट दिलो, भगवान हमको ये कष्ट दिया, भगवान के ऊपर दोष लगा दिया। क्यों? जानता नहीं है। जैसे आप कहेंगे अरे भगवान ठाकुर जी ये क्या है, जहां भी जाता हूँ परेशानी होती है, तो ठाकुर जी के ऊपर दोष लगा दिया। ठाकुर जी आप ये क्या, हमारा ये, हम जहां भी जाते हैं पड़ोसियों से विवाद होता है और हमको शांति नहीं मिलती। क्या समझे? ठाकुर जी हमें शांति पाচ্ছি না, सब যেখানে যাই সেখানে অশান্তি, যেখানে যাব। आदिभूत जो है, अधिभूत जो है प्रारंभ हो गया, हाँ, और अधिक हो गया, हम पूजा पाठ करें तो ठीक हो जाएगा। पूजा
यही तो केशवानंद महाराज के जो विचार है वो थोड़ा साधारण लोगों से अलग है। पूजा पाठ तो अलग चीज हुआ, उससे तो कुछ फायदा होता है, लेकिन साधना करने से, ध्यान करने से, मंत्र ठीक है तो साधना करने से, ध्यान करने से, गहराई से अनुभव करने से, तो इसलिए गहराई से अनुभव करने से क्या होता है? अधिभूत का अनुभव जैसे करोगे तो फिर विवाद मन में नहीं आएगा, भगवान के ऊपर दोष नहीं लगाओगे, कहोगे ये मेरा किया हुआ कर्म का फल है, ये मन को शांति मिलेगी। भैया जो भी मिल रहा है उससे संतुष्ट होकर रहो, ज्यादा मेल जोल न बढ़ाओ, जरा सावधानी से रहो, या अपने जीवन को अपनी तरीके से चलाओ, दूसरों के भरोसा मत करो। जैसे भरोसा करोगे तो तुम्हें परेशानी मिलेगी। तो हमको क्यों है दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना है, दूसरों से अपेक्षा नहीं करना है। उन কাছ থেকে অপেক্ষা করা, এ আমাকে সুখ দেবে, এ আমাকে ভালোবাসবে, এ আমাকে বুঝেছো, কারোর কাছ থেকে অপেক্ষা করবে না। এই শরীরের যত ব্যায়াম দুঃখ পেয়েছো সবই প্রারব্ধ। এবার যদি মগজে ঢোকে না, কেন? ধ্যান করো, ধ্যান করলে শরীর ঠিক হবে। जप करो, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि नो संशय। जब से ये शरीर सुस्त होता है, 1 करोड़ बार 1 करोड़ संकल्प करके 1 करोड़ मंत्र का जप करोगे तो फिर तुम्हारा शरीर 1 कोटी मंत्र जप कर ले, तुम्हारा शरीर भालो থাকবে। हिंदी तो बुझो ना, वो ঘড়ঘড়ি সব নিয়ম সমস্যা। এই জন্য 1 কোটি মন্ত্র জপ করলে শরীর ভালো হবে। আর তুমি তোমাকে যতই বোঝাই, তুমি ফুসফুস করে কথা বলে কিটকিট করে গুরুদেব ধম দিচ্ছে। এই জন্য 1 কোটি মন্ত্র জপ করো, 1 কোটি 1 করোড় মন্ত্র জপ করো। জপ করতে থাকো, ধ্যান করতে থাকো, শরীর ভালো হবে। আগে তো শরীর মাধ্যম করু ধর্ম সাধন। বাড়িতে বটগাছ মরুক আর ইঁদুর মরুক আর কুত্তা মরুক আর পাখি মরুক, তোমার কি হয়েছে? তুমি ধ্যান করবা, জপ করবা। কেন করবা? তোমার শরীর ভালো করে শুনে রাখো, শরীর মাধ্যম করু ধর্ম সাধন। তোমার শরীর যদি ঠিক না থাকে তা তুমি কি ধর্ম সাধনা করবা? ঘোড়ার ডিম করবা? বাড়িতে গরু মরেছে, গরু মরার পরে আমার দুঃখ হয়ে গেছে, বটগাছ মরেছে তাই আমার শরীরে ভূত ঢুকে গেছে, আর একটা বটগাছ মরার পরে 3টে ভূত ঢুকেছে, বাড়িতে উৎপাত হচ্ছে, গুরুদেব যজ্ঞ করাবো না কি করাবো? কিচ্ছু করাবে না, শুধু ধ্যান করবে। ध्यान करो, मंत्र जप करो, ध्यान और मंत्र जप। इससे तुम ठीक हो जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा वाइब्रेशन दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। समझ गए ना? বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পারোনি? হিন্দিতে বলেছে, হ্যাঁ হিন্দিতে বলেছে, সমঝা সমঝা বাংলা কলাম তো, বাংলায় কলাম যে তুমি যত জপ করবে, ধ্যান করবে, তোমার শরীর সুস্থ হবে। এটাই হচ্ছে কারণ। শরীর যদি ঠিক না থাকে তুমি কিসের ধ্যান করবে? শরীর যদি ঠিক না থাকে মন ঠিক থাকবে না। মন ঠিক না থাকলে মন সাধনায় তোমার মনকে লাগাতে দেবে না। আর একবার কি কব, এই কথাগুলোই তো কব। তাই জন্য মন যদি ঠিক না থাকে, শরীর যদি ঠিক না থাকে, ধ্যান যদি না করো, গুরুদেবের কথা মতো গভীর ধ্যান করো, স্পাইনাল কর্ড সোজা করে একদম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম, যখন শরীর খারাপ লাগছে, তাহলে আমার খারাপ লাগছে, তখন সোজা হয়ে যাও, হয়ে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ये सब शरीर जब खराब लगते तब करो। शरीर अगर तबीयत खराब हो रहा है
जप करो स्पाइनल कॉर्ड सीधा करके, फिर शरीर सुंदर, বুঝেছো? জপ করলে শরীর সুন্দর থাকবে, আর শরীর সুন্দর থাকলে মন সুন্দর থাকবে। তাহলে মনের মধ্যে ওই ভূতনি ঢুকে গেছে না, বট গাছের ভূতনি ছিল যে কটা শব্দ ঢুকে আছে, সেগুলো ভেতরে গুড়গুড় 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 করতে থাকবে। ওগুলোকে দূর করার উপায় হচ্ছে ভেতরে নারায়ণকে ঢোকাতে হবে। কাকে ঢোকাতে হবে? এই! নারায়ণকে। নারায়ণকে ঢোকাতে হবে ভেতরে, নারায়ণকে জাগাতে হবে ভেতরে। ধ্যান করো, নারায়ণকে ঢোকাও ভেতরে। নারায়ণ ঢুকলে ভূতনি আর থাকবে না। পেতনি, ভূতনি, ডাকিনি, প্রেত, ভূত এরা থাকবে না। আবার কথা বলে, যখন ভূতনি চুপ কর, এই ভূতনি চুপ কর, চুপ কর। আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার কাজ কি ধ্যান করা। ধ্যান করলে শরীর মন ঠিক হবে। গুরুদেবের ধ্যান, নারায়ণের ধ্যান, যার ধ্যান হোক করে যেতে হবে। যত করে যাবে তত শরীর সুস্থ হবে। শরীর সুস্থ হলে মনে শান্তি আসবে। তখন বলবা না যে আমি মরবো। मरने की इच्छा होती है, क्यों होती है? ये भी एक डिप्रेशन का नार्व का रोगी है, तो इसीलिए तो इसको भी डांटना पड़ता है। तो मनुष्य को अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहिए। पहले ये मूर्छा हो जाती थी, मृगी बालन जैसा गिर जाती थी धम से, अब वो ठीक हो गया। यहाँ आपके ठीक हो गया, लेकिन और भी ठीक होना जरूरी है। हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम कहते पूरा ठीक हो जाओ, ध्यान करो, गुरु के पास इतने दिन रहे, अगर तुम बदले नहीं तो गुरु ने क्या किया और तुमने क्या किया, गुरु के कितने वचन सुने और गुरु जी ने क्या गाइड किया, फिर तुम ठीक नहीं हुए। ठीक है ना? तो ठीक तो होना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। नहीं होगे तो जाते समय पीटते पीटते ले जाएंगे, ट्रेन के अंदर पीटेंगे और लोग कहेंगे क्या हो रहा है महाराज? बोले इसमें भूत लग गया इसलिए पीट रहा हूँ, इसको भूत छोड़ाना है। तो इसलिए কি বলছি, পিটতে পিটতে নিয়ে যাবো ট্রেনের মধ্যে, পিটাই করতে করতে যখন চেঁচাবা, ওরে বাবা রে, বলে মহারাজ জি ট্রেনের লোক বলবে কি হলো বাবা পেটাচ্ছ কেন এই মাইকে? বলে এর মধ্যে পেতনি ঢুকেছে তাই বের করার জন্য পেটাচ্ছে। পেটাতে পেটাতে নিয়ে যাবো ওখান থেকে। এখন যদি ধ্যান ঠিক মতো না করো, শরীর খারাপ হলেই ধ্যান করতে হবে, মন্ত্র জপ করতে হবে, একদম সুন্দর হয়ে যেতে হবে। ভেতরে যাতে কোনো অন্ধকার না থাকে। যখনই শরীর খারাপ লাগবে তখনই ও, যদি বসে না করতে পারো শুয়ে শুয়ে ধ্যান করবে। শুয়ে শুয়ে ধ্যান করতেই হবে। ধ্যান করে মনের শক্তি বাড়াতে হবে। আর কটা দিন আছে, আর 6 তারিখ হয়ে গেল। এই জন্য মনে রাখতে হবে যে যাওয়ার আগে যেন আমি সুন্দর হয়ে যাই। আমার মন সুন্দর হবে, আমার প্রাণ সুন্দর হবে, আমার বুদ্ধি সুন্দর হবে। समझ रहे बात को? मन सुंदर होगा, होना होगा। मन सुंदर হবে, বুদ্ধি সুন্দর হবে, চেতনা সুন্দর হবে, হৃদয় সুন্দর হবে, সাধনা সুন্দর হবে। গুরুদেবের আদেশ মতো সব সুন্দর হয়ে বাড়িতে যাবো, সবাই তখন দেখে বলবে বাহ তো বেশ সুন্দর হয়ে গেছে। সব দেখে খুশ होंगे, ये सब सुंदर হয়ে গেছে, वाह। होगा कि नहीं? तुम भी सुंदर हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर मन भी खुश होगा, दिल भी खुश होगा, और पिताजी भी खुश होंगे, गुरुजी भी खुश होंगे, और लोग भी खुश होंगे। ये तो आजकल बहुत अच्छा इसका चलने में, इसके हर पग में कॉन्फिडेंस है। जब प्यार रखते हो ना, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं जब चलता हूं तो मेरे चलने का स्टाइल को देखना। मैं चलता हूं तो मेरे प्यार में भी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, मेरे आंखों में भी दिखाई देता है, मेरे शरीर के हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। इसलिए कॉन्फिडेंस ही जीवन का जो, আর কনফিডেন্স মানে কি? আত্মবিশ্বাস। চলতে হবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, বুঝেছ? দুর্বল মন নিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে কে পায়? বলে নির্মল মন জন সহি वही पाओ। तो निर्मल मन, मन के अंदर ময়লা ভরা हुआ, মনের মধ্যে যদি ময়লা ভরে থাকে, দুশ্চিন্তা ভরে থাকে, কপটতা ভরে থাকে, মিথ্যাচার ভরে থাকে, ভগবানকে পাবো কি করে? নির্মল মনে যেন সহি মই পাবো। মনের মধ্যে এই আমার এই চিন্তা হচ্ছে,
ওই বটগাছ দুটো মরে গিয়ে ঘরে এবার শান্তি এসেছে। এই বটগাছ মরে গেছে। জোগাড় আবার কথা বলো, মেরে ফেলবো একদম, কেটে ফেলবো। আর মনে হয় मेरे ही फैलबो एकदम, चुप करो, मार डालेंगे बिल्कुल। चुपचाप रहो, जो कहते हैं उसको याद करो। अरे संसार में बहुत कुछ होता है, उससे क्या डरना। जो डर गया वो मर गया। ये शब्द ऐसे नहीं कहा गया, ये प्रवाद वाक्य है। प्रवाद ये पुराने काल से चला आ रहा है। तो क्यों चला आ रहा है? लोगों ने ये अनुभव किया कि जो डर गया सो मर गया। हाँ, हाँ, जो डर गया सो मर गया। इसलिए डरना नहीं है, माने भय पावार कथा नहीं, भय पावे ना। ভয় অনেক ভয় কম হয়েছে না, পুরো কম হতে হবে, পুরো না হলে পিঠের চামড়া তুলবো গাড়িতে গিয়ে। তা গাড়িতে গিয়ে পরীক্ষা করবো কিরকম হচ্ছে, গাড়িতে গিয়ে পিটবো আর লোকে বলবে মাতাজি को बाबा क्यों पीट रहा है, তখন দেখতে বাবা কিরকম হয়। সন্ধ্যাদির পাশে থাকবে ওগুলো ভূত ছোড়া। হ্যাঁ, সেই জন্য এখন থেকে ভয় কমাতে হবে, ধ্যান বেশি করতে হবে, শরীর খারাপ হলেই ধ্যান করতে হবে, गुरुदेव कथा सुनते हुए मन के एकाग्र करते हुए। इसलिए अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलिवर, जो अंतकाल में मेरा स्मरण कर सकेगा वो तो मुक्ति को पालेगा। मुक्ति तो उसको मिल ही जाएगी, मुक्ति मिलेगी निश्चित, जो अंतकाल में प्रभु का। लेकिन अंतकाल में प्रभु का स्मरण करने के लिए ये सारे वायुओं में भगवान को प्रतिष्ठित करना तो होगा। मूलाधार में मृत्युंजय का प्रतिष्ठा करो, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठा करो, मणिपुर में नारायण को प्रतिष्ठा करो, बिंदुकुट में देवी शक्तियों का प्रतिष्ठा करो, हृदय में लक्ष्मी नारायण का प्रतिष्ठा करो, आज्ञा चक्र में राधा माधव को प्रतिष्ठा करो, यहाँ पर रामचंद्र भगवान को प्रतिष्ठा करो, यहाँ पर हनुमान जी को प्रतिष्ठा करो, यहाँ पर जगदम्बा को, ये सबको प्रतिष्ठा करो। सबको आंख बंद करते ही देखो, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना के साथ सारे ज्योति प्रकाश मेरे अंदर सारे देवता निवास करते हैं। हमार शरीर सब देवतार निवास, सब আমার শরীরটাই একটা দিব্য মন্দির। এই দিব্য মন্দিরে সব দেবতা, মূলাধারে মৃত্যুঞ্জয়, স্বাধিষ্ঠানে ব্রহ্মা, মণিপুরে নারায়ণ, ধীরে ধীরে সব জেগে গেছে। বাহ, জেগে গেছে। আমি যে হাতটা এরকম করছি না, এখান থেকে একটা হলুদ আলো এইভাবে চলে গিয়ে উপরে একটা আকাশ তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। বাহ, লক্ষ্মী ছেলে, বাঁশি বাজাও, ভালো করে বাজাও। অদ্ভুত অদ্ভুত দেখতে পাই, অদ্ভুত 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 দেখি। হ্যাঁ, ভালো করে কৃষ্ণ যখন দেখলাম এই দিক দিয়ে একটা হাতটা এরকম করলাম, এই দিক দিয়ে হলুদ আলো ছড়িয়ে উপরে নীল আকাশ তৈরি হয়ে গেল। আকাশের মাঝখানে কৃষ্ণ, आसमान में कृष्ण मुरली बजा रहा है, मुझे दिख रहा है। तो ये साधना करते करते ऐसा अभ्यास हो गया कि आंख बंद करते ही, क्योंकि हम कुछ कोशिश नहीं करते, क्या ध्यान कर, धारणा से मन ऊपर आ गया, ध्यान के जगत में आ गया। ध्यान जो है स्वाभाविक होता है, उसे कोशिश करने से धारणा हो जाती है। कोशिश किए बिना जो जागृत हो जाए, वो চেষ্টা না করে যে জাগ্রত চেতনায় যে সত্য জাগে, সেটা হলো কি, সেটাকে বলে ধ্যান, সেটাকে বলে। আর চেষ্টা করে গুরুদেবকে দেখবো, এটাকে বলে ধারণা। এটা ধ্যান হয় না, এটা ধারণা হয় না। এটা করতে করতে মন যত নির্মল হয়ে যাবে, বুদ্ধি নির্মল হয়ে যাবে, ভাব নির্মল হয়ে যাবে, মন্ত্রের জপ করবে, ঈশ্বর প্রণিধান করবে, তখন কি হবে না সমস্ত সত্যগুলো প্রকট হতে থাকবে, ধ্যান হতে থাকবে। ধ্যান স্বাভাবিক আনন্দময় ধ্যান। হ্যাঁ, আজকে রাত্রে স্বপ্নে দেখছি, ওই অনেক স্বপ্ন দেখেছি, সব দিব্য দিব্য স্বপ্ন। তার মধ্যে ভোরবেলা একটা স্বপ্ন দেখছি, ওই ববি হাকিম এসেছে। কি ওর নাম? হ্যাঁ, ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ হাকিম এসেছে, এসে আমাদের ওখানে বসেছে, বসে আমার সঙ্গে কথা বলবে। ছন্দা বলছে, এই লোকটাকে তো আমি চিনি, এই লোকটা এসেছে, এই লোকটাকে আমি চিনি। ছন্দা বলছে, বলে এই লোকটাকে তো আমি চিনি, एक मंत्री है बंगाल में। तो सुबह देखा कि वो मुसलमान है,
फिरहाद हाकिम, तो अब मेरे पास आ गया, आके नमस्कार करके बैठ गया। और ये चंदा देवी जो किचन में है, और ये आया, ये इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो इसको पहचानता हूँ, इसको तो मैंने बहुत बार देखा। ये आदमी तो ऐसे कह रहा है कि उसको अपमान फील हो रहा है। तो ऐसे कहने के कारण मैंने कहा चुप हो जाओ। हाँ, फिरहाद हाकिम को मैंने कहा आप मंत्री हैं, आए हैं, बहुत अच्छा, बैठो, और आपके लिए आप क्या खाएंगे बताइए, जो आपको पसंद हो। हम लाए और आप खाए नहीं, तो ऐसा तो ठाकुर जी का पैसा बर्बाद नहीं करना है। आप बोलिए क्या क्या खाएंगे? लड्डू खाएंगे, जिलाबी खाएंगे, और सुबह सुबह के टाइम सिंगाड़ा भी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, जो जो बोलेंगे वो ला देंगे। बोले महाराज जो भी नाम बोला वो सब मेरा फेवरेट है, मेरा पसंद है, और चाय। तो हम बोले ठीक है, फिर इसको ले आते हैं, तुमको खिलाएंगे। तो इस तरह से ये सब होता है। तो मनुष्य के जीवन में जब वो आनंद में रहता है, सपने भाग टूट गया, तो मैंने कहा चुप हो जाते, ऐसे अपमान करके इतना बड़ा मिनिस्टर है, इसको ऐसे करके बोला जाता है क्या? ठीक से बोला करो। तो इसलिए अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता बले, অন্তকালে আমার চিন্তা করতে করতে যদি শরীর ছাড়া যায়, তাহলে মুক্তি তোমার করতলগত, তুমি मुक्ति लाभ करोगे। देह शरीर से मुक्त हो जाएगा, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और य प्रयाति समद्भावम याति नस्तत्र संशय, य प्रयाति समद्भावम, मदभावम मेरे भाव को लेकर के जो शरीर छोड़ेगा, আমার ভাবনা নিয়ে যে শরীর ত্যাগ করবে, বুঝতে পারলে? তা কি হবে? জাতি নাস্তত্র সংশয়, ও মেরে ধাম को আমার ধামে চলে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, ভগবানের ধামে চলে, বুঝতে পেরেছো? তো তুমিও চলে যাবে। এখন থেকে যদি সবসময় ধ্যান করো, সবসময় মন্ত্র জপ করো, সবসময় গুরুদেবের আদেশকে চিন্তন করো, গুরুদেবের কথাকে মনে করো, গুরুদেবের উপদেशগুलोকে যদি বিচার করতে থাকো, বিচার করতে रहोगे, तो सब कुछ सुंदर हो जाएगा, सब सुंदर হয়ে যাবে, আর ভগবানের কাছে চলে যাবে, আর মুক্ত হয়ে যাবে, আর সব সুন্দর হবে। ঘর বার যত, বাড়িতে সবাইকে গিয়ে বলবা যে আমি যা ধ্যান শিখেছি তোমরা সবাই ধ্যান করো। কি বলবা? বৌমাকে বলবা সবাই 5 মিনিট করে ধ্যান করো রাত্রে শোয়ার সময়। তোমার বরকে আগে বলবা বরের কান ধরে আমার কাছে আনবা, বুঝতে পেরেছো? ও মন্ত্র নেয়নি, ওর কান টান ধরে, বলে কান ধরে যেতে বলেছে তোমার, আমি ধরবো না, তুমি নিজে নিজে ধরো। বরের কান বউ ধরলে একটা লোকে খারাপ করবে না, সেই জন্য इसके जो पति है, हम कह रहे हैं कान पकड़ के ले आना, तो हम कहते हैं तुम पकड़ोगे तो लोग खराब बोलेगा, उसको बोलना तुम कान पकड़ के चलो, खुद गुरु जी के पास चलो। और गुरु जी बोले मंत्र जप करो, रात को सभी परिवार के लोग, सारा बाड़ीर लोग मिले शोवार समय ध्यान करो, मंदिरे गিয়ে ধ্যান বসো, সকালবেলা ওঠার সময় ধ্যান করো, সবাইকে করো, দেখবা বাড়ি সুন্দর হয়ে যাবে। বাড়িতে আর ওই বটগাছ মরুক, আর কুকুর মরুক, আর বিড়াল মরুক, মরে তো সবাই, মরা কি বন্ধ থাকবে কোনোদিন? মরবে? বন্ধ হবে কোনোদিন মরা? কোনোদিন বন্ধ হবে? मरना तो चालू रहेगा ना, ये पैदा भी होता रहेगा, मरता भी रहेगा, और सब ना मरे तो फिर दुनिया में खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। इतने सब पैदा हो रहा है, बैलेंस नहीं रहेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा सब। বুঝতে পেরেছো? সব কিছু ডিসব্যালেন্স হয়ে যাবে, মানে শুধু জন্মাবে আর মরবে না, এরকম যদি হয় তাহলে কি হবে? হয় এরকম, শুধু জন্মালেই তো হবে না, মরতেও হবে। না মরলে ভগবান যদি না মারে, আমি মারবো রুদ্র হয়ে, মহাকাল হয়ে, একদম ত্রিশূল নিয়ে আমি মারা শুরু করবো, যেগুলো না হবে সেগুলোকে মেরেই ফেলবো। বুঝতে পেরেছো? এই জন্য মনে রাখতে হবে, মহাকালের রূপ ধারণ করবো তখন, রুদ্র রূপ। বুঝতে পেরেছো? এই জন্য মনে রেখো। এই জন্য
ভালো করে ধ্যান করো, ভালো করে মন্ত্র জপ করো, ভালো করে ঈশ্বর প্রণিধান করো। বাড়ি গিয়ে যেন না শুনি এই হচ্ছে, দিদি ভালো আছো, এইসব চলেগা নি। নিজেকে ভালো থাকতে হবে। ভালো আছো, है ना? ऐसा नहीं हो, ठीक है? भगवान का ध्यान करते हुए यदि सहज में ध्यान हो जाए, मूलाधार में सहस्रार में यदि मन को टिकाने का अभ्यास हो जाए, तो सहस्रार में मन टिकाने का आदत हो गया तो सब कुछ सुंदर होने लगेगा। ठीक है? सब कुछ, मृत्यु भी सुंदर हो जाएगी। यही तो बंद करो। तो ये सब कुछ हमको सुंदर करना है ना? सब কিছু সুন্দর করতে হবে, মনে থাকবে তো? ধ্যান সুন্দর, মন সুন্দর, বুদ্ধি সুন্দর, চেতনা সুন্দর, গৃহ সুন্দর, মন্ত্র সুন্দর, পূজা সুন্দর। সুন্দর ভাব নিয়ে মন্ত্র জপ করা, ধ্যান করা, ঈশ্বর প্রণিধাन করা प्रतिदिन করতে হবে। ठीक है? सब कुछ सुंदर बना, मन को, ध्यान को, पूजा को, मंत्र जप को, हृदय को, बुद्धि को, चेतना को, और सहस्रार में शांत हो जाओ। जिस समय मैं ध्यान करता हूँ, अगर मैं पगड़ी खोल दूँ तो देखोगे कि यहाँ जो बाल है वो कंपन होने लगेगा, धीरे 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 कंपता है, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन चला जाता है। या आज से नहीं, 98 से बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि देखो बाल कैसे हिलता है। ध्यान करता हूँ तो मन जैसे जैसे सरस्वती का ध्यान करता हूँ तो यहाँ सरस्वती वीर 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 करके ऐसे सरस्वती में बाल थोड़ा 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 कांपता रहता है। यहाँ पर सहस्रार में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वो कांपता रहता है। जहाँ पर मैं चाहता हूँ, ये अभी भी शुरू हो गया, जैसे मैंने कहा ना वो कांपना शुरू हो गया। तो ये सब सारा शरीर एक दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। समस्त शरीर दिव्य शक्तिर द्वारा पूर्ण হয়ে আছে। সেই জন্য যত সাধনা করবে তত দৈবী শক্তি তোমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হবে। মনটাকে সুন্দর করে সাধনা করতে হবে, এইটাই জীবন, यही हमको करना है। अब भस्त्रिका प्राणायाम करना है। ठीक है? ध्यान करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम जितना करोगे सारा डिस्टर्बेंस चला जाएगा। जो भी डिस्टर्ब हो रहा है ना वो सब चला जाएगा।
विश्राम। मूलाधार में मृत्युंजय का ध्यान करो। दिव्य रूप ज्योतिर्मय मृत्युंजय सहस्र दल कमल के ऊपर मृत्युंजय बैठे हुए हैं। उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अगर मन को उसमें लगाओगे, सारे बीमारी, सारे अकाल मृत्यु, सारे मन के तकलीफ, মনের যত অশান্তি, ব্যারাম, চিত্ত চেতনা সব সুন্দর হয়ে যায়। মূলাধার চক্রে মলমূত্র দ্বারের উপরে মৃত্যুঞ্জয়কে ধ্যান করো, সব সুন্দর হবে। বারবার বলা হচ্ছে কিন্তু বুদ্ধি নিচ্ছে না কেন? অনেক কারণ, অনেক কারণ, অনেক কারণ। সেই জন্য স্বাধিষ্ঠান চক্রে ব্রহ্মদেবকে ধ্যান করো, যিনি ক্রিয়েটিভ পাওয়ার সৃষ্টি করে, যিনি তোমার মধ্যে জেনারেট করছেন পাওয়ার, শক্তি সৃষ্টি করছেন ब्रह्मदेव। शक्ति जनरेटिंग पावर वहां से ही तैयार होती है, इसलिए वो जनरेटिंग करने का शक्ति ब्रह्मदेव देते हैं। इसलिए ब्रह्मा का ध्यान, ब्रह्मार ध्यान करो, ब्रह्मार ध्यान करो। अधिष्ठाने मणिपुरे नारायणের ধ্যান করো, যোগভূমি, যেখান থেকে সমস্ত সিস্টেম সঞ্চালিত হচ্ছে। শরীরের সমস্ত সন্ধি ক্রিয়া, ট্রান্সফরমেশন সিস্টেম, ওয়ান টু অ্যানাদার, সেল টু সেল, মাসেল টু মাসেল, অর্গান টু অর্গান, প্রত্যেকটি চেতনার মধ্যে যে সিস্টেমটা কাজ করছে, সন্ধি ক্রিয়া কাজ করে চলেছে, সেটা যোগভূমি থেকে, সেটা নারায়ণ থেকে। সেই জন্য এবার করো অনুলোম বিলোম। আপনিও করুন, বসে বসে অনুলোম বিলোম করুন, অনুলোম বিলোম করুন, অনুলোম বিলোম করুন, তাতে কমে যাবে। না, কোমরে ব্যথা বলে অনুলোম বিলোম করতে কে নিষেধ করেছে? সোজা হয়ে বসে, কোমর সোজা করে। মণিপুর চক্রে নারায়ণকে ধ্যান করতে করতে বিন্দু পিঠে চলে এসো, যেখানে নবদুর্গা, দশমহাবিদ্যা, ষোড়শমাতৃকা, জাগ্রতা দেবী। অহম পূজয়ামি নমস্কারামি ভক্ত্যর্ঘ্যম সমর্পয়ামি। দেবী নবদুর্গে দশমহাবিদ্যে ষোড়শমাতৃকা, সুখ সমৃদ্ধি বর্ধনম কুরু, সর্বক্লেশ দূরীকরণম কুরু। हृदय कमले साधिष्ठान चक्र है, अनाथ चक्र लक्ष्मी नारायण को ध्यान करो। लक्ष्मी नारायण विराजमान है, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करो। गहरी रूप से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करो। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय। और
सिद्ध चक्र में गणपति का ध्यान करो। रिद्धि सिद्धि संयुक्त गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणपतये लोकादेवादिक्फलकस्तथा सायुधा सर्ववेदा सर्वसिद्धं कुर्वन्तु निधिहम्। ओम गणपति प्रसन्नं भव सर्वक्लेशमुक्तं कुरु। सुख समृद्धिवर्धनं कुरु चित्तं न प्रसन्नं कुरु। आप करो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति। विश्राम, शांत हो जाओ। गहरे मन से सारी पीड़ा पिंगला सुषुम्ना से जुड़े हुए आठों चक्र में देवताओं का अनुभव करो। तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश, दिव्य आलो আছে, दिव्य प्रकाश আছে, दिव्य ज्योति আছে, সব দেবতারা বসে আছে। তোমার দেহ মন্দিরে সব দেবতার নিবাস, সব দেবতা তোমার মধ্যে নিত্য অবস্থিত। সেই দৈবী চেতনায় সমাহিত হও, দৈবী আনন্দে। তোমার আজ্ঞা চক্রে রাধা মাধব, তোমার ডান দিকে রামচন্দ্র, বাম দিকে হনুমান, ব্রহ্মতন্ত্রে জগদম্বা জগৎ কল্যাণী ত্রিনয়নী মহাশক্তি রূপা। ওম ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। आप प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जारी प्राणायाम। आप भ्रामरी प्राणायाम करो। दानी और सरस्वती लक्ष्मी, विश्व प्रकृति, नवदुर्गा, दश महाविद्या, षोडश मातृका, नवग्रह, ग्रह देवता, ग्रह देवी, देवलोक, सर्वलोक, ऋषिलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक और विश्व प्रकृति, विश्व देवता, कामधेनु, कल्प वृक्ष, सबका ध्यान करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए विश्व प्रकृति नमः, विश्व देवाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, कामधेनवे कल्पवृक्षाय नमः, नवग्रहाय नमः, गुरुदेवेभ्यो नमः, उत्तरेत पिशाच यक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व सर्वोपदेवताभ्यो नमः,
ओम चौषट्टि योगिनीभ्य नमः चामुंडायै नमः ओम ऋषिलोकाय नमः समस्त ऋषये नमः सनत सनातन सनंदन सनत कुमाराय नमः जीवन परिपूर्णं कुरु परिपूर्ण आनंद प्रदानं कुरु परिपूर्ण आनंद प्रदानं कुरु सर्व समृद्धि प्रदानं कुरु ओम शांति ब्राह्मणी प्रणय ओम मिश्रा आप मुंडकासन करना है, ठीक है? तैयार हो जाओ। यो পড়ছে না, দরজা বন্ধ করে কি মোবাইল দেখছে? হ্যাঁ, কোথায় গেছে মোবাইল? আচ্ছা, তো ও কি করছে? ঘুমাচ্ছে নাকি? পড়ছে? मुंडकासन আজকেও রোদ বেরোয়নি, তাহলে চিন্তা করে যদি কাল ওই কাপড়ে না দেওয়াতাম, ওগুলো সব পচে যেতাম যেতাম। मुंडक आसन से बहुत सारा फायदा होता है। मैंने कहा ना, सारे जो किडनी का और पेंक्रियास का और मूत्र नाली का ये सारा इफेक्ट ये कम हो जाएगा। देखा है ना, कम हो रहा है क्या नहीं? महाराज जी के आप पास आके शरीर का भी सुंदर हो रहा है, शरीर भी सुंदर होगा। इसको ऐसे नाभि के यहाँ पर ऐसे दबा के जितना नीचे जाओगे ना, नाभि के वहाँ नीचे, नाभि के नीचे से, हाँ, इसको दबा के करोगे तो ये जो पेशाब का कंट्रोलिंग पावर कम हो जाता है, ये कंट्रोल अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, यही बात है। इसलिए ব্যাঘ্রাসন নাকি কি করবে না? অগ্নিসার ক্রিয়া, অগ্নিসার করো। अब शक्ति को ऊपर की तरफ खींचो।
विश्राम। अंदर देखो, बात करता है। बात क्यों करती है? मर रही है क्या? बात नहीं किया। बात क्यों किया? তুমি কিছু বলেছে তুমি? সে লোক দিয়েছে সেটাও বলতে হবে? আমরা মূর্খ। फिर एक बार विश्राम। अभ्यासन। বাটারফ্লাই বানিয়ে তো ऐसे आपको ऐसे करके बैक पकड़ना, जितना नजदीक खींच सके इसके, फिर ऐसे जोर से थोड़ा ऐसे भी कर लो। हाँ पूरा बैक को ऐसे करके बैक को ऐसे अब बैक का अच्छी बैक को दबा के ऐसे करके नीचे को नीचे ले जाए, कितना हो जाएगा? बैक को दबाते हुए
सीधा रखना है, सीधा करके घुमाना है, जिससे हार्ट का प्रॉब्लम कम हो जाता है, हार्ट में जो भी फैट जमता है वो हट जाता है। इसलिए तो बहुत जरूरी है कि जो भी कुछ कर रहे हैं इसका व्याख्या तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके टीम का इफेक्ट बहुत बड़ा है। ये जो शोल्डर पेन है इससे बचने के लिए माइग्रेन है सब कुछ। আমাদের দুই টাকে একটু মেসেজ করা যায়, দুটো লাখ বসায়
চলছে তো? হ্যাঁ চলছে। কৌশিক দেখতেছি, কৌশিক কাইয়া। একটু অ্যানাউন্স করতে হবে, এটাকে এখানে নিয়ে এসো। পিসা ধরে নিয়ে এসো। প্রণাম করো, সাইডে সাইডে, ওটা সামনে থাকবে। এই তো প্রণাম নিয়ে এসো, একদম সামনে। আপনারা আমাকে দেখছেন, দেখো এটা, দেখো কি হচ্ছে। আরে তুমি ওখানেই থাকো না, ওখানেই দেখো না কি হচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। ভক্তদেরকে বিশেষ অ্যানাউন্সমেন্ট যে এখানে কিন্তু বৃন্দাবনে কালকে থেকে বর্ষা হচ্ছে, প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে। তো এই ঠান্ডার মধ্যে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা যেন পালাবেন না, সবাই প্রোগ্রামে থাকবেন, সবাই প্রোগ্রামে থাকবেন, আপনারা পালাবেন না এবং সবাই প্রোগ্রামের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। আর 21শে জানুয়ারি আমি কলকাতায় পৌঁছাবো এবং আর একটি বিশেষ অ্যানাউন্সমেন্ট, এখন থেকে ভাগ্য বিচার শুরু হবে। হস্তরেখা বিচার, ভাগ্য বিচার, জোটক বিচার 1001 টাকা করে লাগবে। মনে রাখবেন, ভাগ্য বিচার, জোটক বিচার, হস্তরেখা বিচার এবং যা কিছু বিচার এগুলো 1001 টাকা করে লাগবে এবং পুষ্টি বিচার 5000 টাকা লাগবে এবং কালসর্প কবচ 3100 টাকা লাগবে। অন্যান্য কবচ প্রায় সব 3000, আর দেবী কবচ এবং সরস্বতী কবচ 2500 টাকা থাকবে। এই জন্য অ্যানাউন্সমেন্টগুলো জানিয়ে দিলাম। আপনারা মনে করে রাখবেন যে এখন থেকে আসতে গেলে 1000 টাকার কমে ভাগ্য বিচার করাতে পারবেন না। এই জন্য 1000 টাকা করে লাগবে ভাগ্য বিচারের জন্য এবং কালসর্প কবচ 3100 টাকা করে লাগবে। সেইটা জেনে 29শে জানুয়ারি কালসর্প দোষ কাটানো হবে। আর আমি 21শে জানুয়ারি কলকাতায় পৌঁছে যাব এবং তারপরে আপনারা সবাই যুক্ত থাকবেন এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক 19শে মার্চ দীক্ষা হবে, দীক্ষার প্রস্তুতি চলছে, সেইগুলো আপনাদেরকে অ্যানাউন্সমেন্টে জানিয়ে দেব। এবং মনে রাখবেন, কলকাতায় বৃন্দাবনে এখন কিন্তু প্রচুর ঠান্ডা, মানে বর্ষা হচ্ছে, প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে। সে ঠান্ডার মধ্যে আমরা প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা সবাই প্রোগ্রাম ফলো করবেন এবং 22 তারিখ থেকে কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পাবেন। পুরনো ছক দেখতে 300 টাকা লাগবে, যন্ত্রগুলো 500 টাকা করে হয়ে গেছে, ঘোড়ার নাল 300 টাকা, সেইগুলো মনে রাখবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন। ওম শান্তি।